नवा गांव आप पूरा देख लो, पहाड़ियों से भरा है। मोहाली में भी है, जीरकपुर में भी है, चंडीगढ़ में भी है ना। वैसे हम भी यहीं रहना चाहते हैं, पर इन केस अगर यही माहौल बन गया तो हम क्या यहाँ रह पाएंगे? मैं बोल रही हूँ ना, पोक कर रहे हैं, आओ आओ यहाँ पे। हमने भी आर्मी में हमारे भी गढ़वाल रायपुर में, तो क्या सिख समाज से नहीं है? पार्किंग का मुद्दा है, उसे राजनीतिक मत बनाओ, वो आपस में निपट लेगी सरकार, जो भी होगा वो हो जाएगा, पर आप बहती गंगा में अपने हाथ मत दो। देखो लाए हुए लंगਰਾਂ ਨੂੰ इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਉਖਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है कि साडा रोजगार मरदा है। इससे क्या हो रहा है, दो राज्यों में नफरत पैदा हो रही है, और जितने गढ़वाली हिमाचल से हैं, पहाड़ों से, जहाँ से भी गढ़वाली बैठा है ना पंजाब में, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जो ऋषिकेश में घटना हुई, वहाँ पे भी कानून हाथ में लिया गया, यहाँ पे भी कानून हाथ में लिया गया, तो क्या उत्तराखंड की सरकार सो रही है? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। कोर्ट में ना किसी को भी पेश किया जाता है ना, 10 से 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, ये मैंने खुद भी पढ़ा है और मुझे पता भी है। तो क्या उनको केस संभालने के लिए टाइम नहीं दिया गया? ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। कमेंट सेक्शन में तो गालियाँ आती हैं, पर पर्सनल मुझे थ्रेड आए हैं कि अगर तेरे को तूने ये डिलीट नहीं की ना सारी वीडियो, तो तेरी ऐसी एडिटिंग करूँगा वीडियो कि सारी ज़िंदगी बैठ के रोएगी। मैंने किसी में भी गाली नहीं दी है, अपनी बात रखी है, अपना पक्ष रखा है, आप भी अपना पक्ष रखिए, पर वो लोग तो गालियों पे आ रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ? मैं बता नहीं सकती, इतने भाई हैं ना, उन्होंने मुझे ये बोला है कि रखड़ी पे ना तो सुहाना गुरुद्वारे जरूर आइए। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੇਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਥ ਕੀ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਧਾਕੜ ਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਥ੍ਰੈਟ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਲੈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਡਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मेरा नाम हिमानी है और मैं देहरादून की हूँ, वहीं मेरा बॉर्न हुआ है, और यहाँ मैं चंडीगढ़ में रह रही हूँ 14 साल से। यहाँ पे चंडीगढ़ में आप 14 साल से रह रहे हो? जी, 14 साल से रह रही हूँ चंडीगढ़। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ करना ਪਿਆ? देखिए, कमेंट सेक्शन में तो गालियाँ आती हैं, पर पर्सनल मुझे थ्रेड आए हैं कि अगर तेरे को तूने ये डिलीट नहीं की ना सारी वीडियो, तो तेरी ऐसी एडिटिंग करूँगा वीडियो कि सारी ज़िंदगी बैठ के रोएगी। तो वीडियो कैसी एडिटिंग होगी मेरी जो मैं सारी ज़िंदगी बैठ के रोऊंगी? इसी तरीके की, मतलब इतने सारे दो तीन, मतलब बिल्कुल खुलेआम दे रहे हैं। उनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि आपके घर में भी माँ बहन बेटियाँ होंगी, तो आप किसी की बेटी को इस तरह से कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पे मुद्दा पार्किंग को लेके सरकार आपस में निपट लेगी। जो चीज़ सच थी, मेरे लॉ बोलता है कि हम अपनी बात सोशल मीडिया पे रख सकते हैं विदाउट गाली। मैंने किसी में भी गाली नहीं दी है, अपनी बात रखी है, अपना पक्ष रखा है, आप भी अपना पक्ष रखिए, पर वो लोग तो गालियों पे आ रहे हैं।
ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਚਾ ਕਰੋ, FIR ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ वो उत्तराखंड तो ही आ रहे हैं। देखिए, उन्होंने सोहाना से जब हमारे सिख भाई निकले थे, उन्होंने स्पेशली बोला था कि हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, हमारी कुछ मांगे, हम अपने उन बच्चों को लेके वापस आएंगे, सिख भाइयों को जिनके साथ अपराध जो भी हुआ है ना, वहाँ पे पार्किंग इशू में उनके साथ मारपीटाई हुई है, उनको हम वापस लेके आएंगे और अपनी चीज़ें पर्चा वगैरह अपने मुद्दा रख के वापस आ जाएंगे, शांतिपूर्वक जा रहे हैं। उनको रोका गया पहले तो, चलो ठीक है। उसके बाद वहाँ से भड़काऊ वीडियोज़ आ रही हैं, UKD का जो आशीष है उसी के ग्रुप की हैं, वो कहते हैं कि आओ हम आपके लिए बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इनको सरकारी गाड़ियों में लाओ। क्यों लाओ सरकारी गाड़ी में? तुम क्यों भड़का रहे हो उनको? क्यों मतलब आगे से पोक कर रहे हो? फिर बोल रहा है कि मैं 500 रुपये दे रहा हूँ, उनके पास पैसे नहीं है। पहली बात तो उन्होंने आप लोगों से मांगे नहीं, अगर उन्होंने चंदे के लिए डाला भी तो अपने सिख समाज से डाला है। अगर आपके पास इतना है तो उत्तराखंड में बहुत लोगों को ज़रूरत है, आप जाके वहाँ सेवा कीजिए ना। आप लोगों से वहाँ तो सेवा हो नहीं रही है, आप उनको 500 रुपये दे भी रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं, पर आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, मतलब लोगों को भड़काने के लिए, उनको सामने से पोक कर रहे हैं कि आइए लड़ाई करिए हमसे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? आ रहे हैं, मेरे को भंडारी करके है, उत्तराखंड के ही हैं। किस तरह ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? यही वीडियो वायरल करने के लिए मेरी। अच्छा, कोई जानो मारन मूरन ਦੀਆਂ कुछ ऐसी कोई धमकियां? जान के मारने की तो धमकी अभी तक नहीं आई, बट वीडियो वायरल कर देंगे तो उससे भी तो एक इंसान या तो सुसाइड कर लेता है, सुसाइड कर लेगा, वो तो आपको पता ही है, या तो डिप्रेशन में चल जाएगा, सुसाइड कर लेगा अगर किसी लड़की की ऐसी वीडियो वायरल हो जाए तो। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ? वो देहरादून ही रहते हैं। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈरह? नहीं नहीं नहीं, ऐसा उनके साथ अभी कुछ नहीं हुआ है, बट मैंने उनको समझा दिया है कि मेरा मैटर है, मैं चंडीगढ़ रहती हूँ, जिसको भी प्रॉब्लम है मुझसे बात करें, मैं पंजाब की धरती पर रह रही हूँ, मैं यहाँ का नमक खा रही हूँ और मैंने जो देखा है यहाँ के लोगों को मैं वो बयान कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। वो जो सेवा करते हैं ना, उत्तराखंड का कोई भी पर्सन सेवा नहीं कर सकता। PGI के बाहर जो लंगर लगता है ना, बाहर से कितनी दूर दूर से लोग आते हैं, वो भूखे रह जाए वहाँ पे, उनको सारा खाना हमारे जो सिख समाज के हैं भाई लोग वो खिलाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ? नहीं, मेरे को कभी किसी ने तंग नहीं किया। मेरी फ्रेंड्स सारी सिख हैं और अगर उनका तीज त्यौहार आते हैं ना तो वो मेले भी भेजते हैं। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? मुझे मेरी फ्रेंड की मम्मी है, वो हर साल करवा चौथ भेजती है, पूरा सरगी भी उसमें सब कुछ भेजती है। और 5 साल से मैं देहरादून नहीं गई हूँ, उत्तराखंड नहीं गई हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहीं इतना प्यार मिल गया कि मुझे जाने का ही नहीं मन करता है। ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। हाँ, बहुत मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मतलब ऐसा करते हैं कि जैसे अपने बच्चे के लिए करते हैं, सेम वही चीज़ है। तो मेरे लिए तो भाई सिख समाज के जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं, और मेरे साथ कभी, मेरे साथ क्या, हमारे साथ किसी के साथ भी गलत नहीं हुआ। मैं तो जो यहाँ पे बैठे हैं ना पहाड़ी, उन सब की तरफ से बोलना चाहूँगी कि भाई शांति बनाए रखो, ये जो तुम बयानबाजियाँ कर रहे हो ना वो मत करो। देखो पार्किंग का मुद्दा है, उसे राजनीतिक मत बनाओ, वो आपस में निपट लेगी सरकार, जो भी होगा वो हो जाएगा, पर आप बहती गंगा में अपने हाथ मत धो। अगर आपको राजनीतिक में आना है तो किसी और तरीके से आओ, कुछ अच्छा करो, इस तरीके से मत करो। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਭੇਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? देखिए, मैं ये बात भी, मैं अगर मेरी ये वीडियो सरकार तक पहुंचती है तो मैं उनसे ये कहूँगी नीचे जो रेट है वो कम होना, चलो ऊपर जो रेट बन रहा है मैं मानती हूँ कि ऊपर तक ले जाते हैं तो थोड़ा हो जाता है, पर इतना भी नहीं होता है कि आप 20 रुपये की बोतल 100 रुपये में दो और नीचे भी आप वो 100 की दे रहे हो, ऊपर भी आप 100 की दे रहे हो, वो नहीं बनता। ऊपर से जो सरकारी नलके लगे हैं, सरकार ने लगाए थे, वो क्यों तोड़े गए, किसने तोड़े हैं वो? और जो लंगर भवन में आग लगी है वो किसने लगाई थी? ये सब जवाब बनता है सरकार से, सरकार को आगे आगे ही जवाब देना पड़ेगा। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਈਏ।
देखो वो अगर आपका रोजगार ख़त्म हो रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सिख भाइयों का धर्म है, वो लंगर लगाते ही लगाते हैं, वो उनकी सेवा है। ऊपर वो काजू बादाम का, ड्राई फ्रूट्स का लंगर लगाया हुआ है, तो आप वो भी तो देखिए, चॉकलेटें मिल रही हैं, ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं, ये चीज़ें भी तो मायने रखती है ना। अभी यहाँ से वो जाती है प्रभात फेरी वगैरह जाती है, उसमें आप देखो प्रॉपर चलता रहता है, छबील चलती है, प्रॉपर फ्रूट्स बंटते हैं लोगों को, है ना। तो उनकी तो है, उनके उसमें है, खून में ना सेवा करना है, ये देखा जाए। मैंने खुद उन्हीं से सीखा है लॉकडाउन में। वो मैंने ये देखा था कि वो लोग अपना घर तो चला ही रहे थे, साथ साथ अपने घर के साथ साथ उनको लोगों को भी खाना खिला रहे थे और बेजुबान को भी खिला रहे थे। तो मैंने जब ये चीज़ देखी तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं कर सकती, अगर वो इतनी संख्या में खिला रहे तो मैं 2 कुत्तों को तो खाना दे सकती हूँ ना। तो मैंने 2 कुत्तों को खाना देना शुरू किया, आज मेरी भी सेवाएं शुरू हो गई हैं। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अमृतसर भी गई हूँ, मेरे को तो ऐसा कभी भी नहीं लगा। हम तो हमारे घर के पास में ही गुरुद्वारे हैं 2-2, हम जाते हैं। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਾਏ ਵੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਖਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਯਾਤਰਾ। पे ना एक बात बोलना चाहूँगी, देखो वहाँ पे ना हर तरीके का आता है, तीर्थ स्थान जो होता है वहाँ पे हर तरीके का इंसान आता है। कुछ ऐसे आते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते, वो लंगर में खा के अपना पेट भर लेते हैं, वो नहीं खा सकते होटलों में, नहीं रुक सकते। तो वो चीज़ वहाँ के लोगों को समझनी पड़ेगी। और अगर आप प्यार दोगे ना उनको तो हो सकता है वो खा भी लें बैठ के। अगर आप उनके साथ इसी तरह का लड़ाई झगड़ा करोगे तो आपके पास कभी भी नहीं आएंगे, वो डरेंगे आपके पास आने से। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? मेरे पे नेगेटिव कमेंट्स आए हैं बहुत ज़्यादा। पहले तो मैंने अपना मैसेंजर खोला ही नहीं, फेसबुक का मैंने कभी ज़िंदगी में खोला ही नहीं था। उस दिन मैंने बैठे बैठे खोलिया तो उसमें ये नहीं मुझे पता कौन सी डेट के हैं, पर उसमें इतने गंदे गंदे वो थे ना, 2-2 3-3 लोगों के थे। एक ने तो फेक आईडी बनाई हुई है, पाकिस्तान की एनजीओ को फॉलो किया हुआ है उसने। ਅੱਛਾ, उससे भी मुझे धमकियां दे रहा है। देखो आप इस स्तर तक तुम गिर रहे हो कि फेक आईडियों से मुझे धमकियां दे रहे हो। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? पंजाब के सिख भाइयों का मेरे पे बहुत बड़ा सपोर्ट है, मैं सच बोलूँगी। उत्तराखंड के ही लोग हैं जो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, वो समझना ही नहीं चाह रहे हैं कि हम सिर्फ शांति बनाने के लिए कह रहे हैं, हम और कुछ कह ही नहीं रहे। इसमें साफ दिख रहा है कि पहले भाई की पग पे मारा गया है, भाई की पग गिरी है, उनका मान सम्मान है वो। तो भाई अपनी डिफेंस में, अब इतने सारे लोगों के हाथ में डंडे थे, रॉडे थी, वो अगर अपनी डिफेंस में नहीं निकालते तो उनको मार दिया जाता ना। जैसे ऋषिकेश में हुआ है, उसको नंगा करके मारा गया है हरियाणा के लड़के को, सेम वहीं पे भी वही चीज़ होती है। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। देखिए मैंने इस वीडियो में भी इसमें ये बात बोली और यहाँ पे भी बोलना चाहूँगी, कोर्ट में ना किसी को भी पेश किया जाता है ना, 10 से 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। ये मैंने खुद भी पढ़ा है और मुझे पता भी है। तो क्या उनको केस संभालने के लिए टाइम नहीं दिया गया? उनके केश खुले हैं, उनकी पग नहीं है सर पे और उनसे चला नहीं जा रहा है। आप देखो ना वो कैसे पकड़ पकड़ के चल रहे हैं। तो उनको मारा किसने? उन पे भी तो फिर अगर वहाँ पे लोगों ने मारा तो उन पे भी फिर हुआ है ना हमला। तो और जिस भाई की पैर टूटा है, हमला तो उन पे भी हुआ है, तो पर्चा तो उन पे भी होना चाहिए। उन पे क्यों नहीं पर्चा हो रहा है फिर? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪੈਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। मैं बोलना चाहूँगी, मैंने आज उनकी मदर की वीडियो देखी थी, मुझे सच में बहुत रोना आया। वो बोल रही कि मेरे को बेटा देख रहा था वीडियो, तो बोलता मम्मी वो नहीं है, वो नहीं है। और मैंने उसके हाथ से फ़ोन लेके देखा कि मुझे सच में रोना कि उस माँ पे क्या बीती होगी। मेरा बच्चा तो दर्शन करने गया था और वो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने सुना 20-20 साल के हैं, ज़्यादा 18 ਤੋਂ 20-22 हाँ। ਸਾਲ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। बताओ, इतने एज के भी नहीं है जिनको तुमने इस तरीके से मार दिया। और सबसे बड़ी बात है कि तुम कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हो? अगर ऐसा कुछ देख रहे हो तो पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे हो? जो ऋषिकेश में घटना हुई वहाँ पे भी कानून हाथ में लिया गया, यहाँ पे भी कानून हाथ में लिया गया। तो क्या उत्तराखंड की सरकार सो रही है? वहाँ की पुलिस सो रही है? वो क्या कर रही है? वो अपना काम क्यों नहीं कर रही है? और अगर चंडीगढ़ में ऐसा कुछ भी होता है ना तो दोनों पक्षों को उठा के पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, दोनों पे पर्चे होते हैं। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ बात की बात है, पर दोनों पे पर्चे होते हैं। फिर कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो फिर देखा जाता है, पर दोनों को ले जाया जाता है। वहाँ पे एक पक्ष को क्यों ले जाया गया?
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਆ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। देखिए मेरा खुद का बेटा है 13 साल का, ठीक है, कल के दिन अगर वो ऐसे जाता है, उसके साथ ऐसा होता है तो हम तो नहीं संभाल पाएंगे अपने आप को। और उसकी माँ पे देखो क्या बीत रही होगी। मैं यही कह रही हूँ उत्तराखंड में जितनी माएँ बैठी है ना, अपने पे लेके सोचो। और उनको पता है कि हमारे कौन कौन बच्चे वहाँ थे उस समय, वो क्यों नहीं उनको बोल रही हैं कुछ, क्यों चुप करके बैठे। अगर मेरे पे कमेंट आया था, अगर तेरे भाई के साथ ये हुआ होता, क्योंकि वो जो लड़का पहाड़ी लड़का है जिसके चोट लगी है, अगर तेरे भाई का सर फाड़ा होता तो तू क्या करती, तू रोती नहीं, चीख चीख के रोती। मैंने उसको सच बोल रही हूँ यही कमेंट किया वापस कि मैं उसको, अगर उसकी गलती होती ना, खुद पुलिस स्टेशन लेके जाती। दो थप्पड़ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ, मैं खुद पुलिस स्टेशन लेके जाती। मैं अगर मेरा बेटा गलती करेगा ना, इन केस कभी, मैं उसको खुद पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। पीछे से पकड़ा रहे हैं, प्रॉपर दिख रहा है, मैंने अपनी वीडियोस में पूरा डाला है, पीछे से पकड़ाए जा रहे हैं वो डंडे। मतलब आप तैयारी से बैठे थे, आपके पास डंडे पहले से रहते हैं, आप पुलिस वालों का नंबर क्यों नहीं रखते? अगर आप डंडे रख रहे हैं तो पुलिस वालों के नंबर रखो ना, उन्हें फ़ोन करो ना। और पहली बात तो ऐसी जगहों पे जगह जगह पे पुलिस खड़ी क्यों नहीं होती थोड़ी थोड़ी दूर पे? जब भी ऐसा कोई मामला होता है पुलिस गायब होती है, रीज़न क्या है? और ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं कि इस पार्किंग के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, उत्तराखंड वर्सेस पंजाब कर रहे हैं, उसमें कितनी पुरानी बातें उठा के लेके आ रहे हैं और अपनी बहती गंगा में हाथ धो रहे ਉਹ हैं। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। हाँ, वो सामने से बिल्कुल मैं बोल रही हूँ ना, पोक कर रहे हैं, आओ यहाँ पे। हमने भी आर्मी में हमारे भी गढ़वाल राइफल में, तो क्या सिख समाज से नहीं है? सबसे ज़्यादा सिख समाज से आर्मी में है। तुम इस तरह के मुद्दे उठा ही क्यों रहे हो? ऐसे बयानबाजी क्यों कर रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है दूर दूर तक? और अगर मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि वो जो भी आशीष नेगी है ना, अगर उस तक मेरी वीडियो पहुँच रही है ना, भाई तुझे अगर अपनी राजनीतिक में पहचान बनानी है तो कुछ अच्छा कर। गरीब लड़कियों की शादी करा, बच्चों को शिक्षा दे, वहाँ पे घरों को संवार, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे, तो खुद राजनीतिक में आ जाएगा। पर इस तरह की ये हरकतें मत कर। इससे क्या हो रहा है, दो राज्यों में नफरत पैदा हो रही है। और जितने गढ़वाली हिमाचल से हैं, पहाड़ों से, जहाँ से भी गढ़वाली बैठा है ना पंजाब में, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 14 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ? देखो मैंने कभी नहीं सुना। आपस में लड़ाई झगड़ा हर किसी के लड़कों का आपस में होता है, वो होता होगा तो बात की बात है, पर ऐसे नहीं कि पड़ोस में सिख समुदाय भी रह रहा है और हिंदू भी रह रहा है तो वो आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा तो इतना प्यार है, बगल में आम लगते हैं ना उनके, वो मुझे इधर से देगी, मेरे इधर से लगेंगे, मैं उधर से दूंगी। इतना प्यार है। मेरे घर में कुछ फंक्शन होगा तो मेरे जो पेट्स हैं मैं उनके घर छोड़ के आती हूँ। ਉਹ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। हाँ, वो संभालते हैं। मेरे बेटा को भी रख लेते हैं। और हमें क्या चाहिए, हम प्रदेश में बैठे हैं ना, हमें प्यार मिल रहा है। हम सच बताऊं उत्तराखंड जाना भी नहीं चाहते, हम पंजाब में ही रहना चाहते हैं। जैसे और पहाड़ियों ने यहाँ पे अपना मकान बना लिया है ना, और गढ़वाली यहाँ पे रह रहे हैं। नवा गाँव आप पूरा देख लो, पहाड़ियों से भरा है। मोहाली में भी है, जीरकपुर में भी है, चंडीगढ़ में भी है ना। वैसे हम भी यहीं रहना चाहते हैं, पर इन केस अगर यही माहौल बन गया तो हम क्या यहाँ रह पाएंगे? हमारी गवर्नमेंट जॉब है, हम यहाँ रह पाएंगे? हमें तो यहाँ से भगा दिया जाएगा ना। तो ये वहाँ की उत्तराखंड की सरकार क्यों नहीं सोच रही है कि जो ये हो रहा है बयानबाजी गलत, वो हम जैसे लोगों पे भी असर पड़ेगा। और वहाँ के जो लोग हैं लोकल, वो क्यों नहीं समझा रहे हैं कि भाई आप कैसे वीडियोस डाल रहे हो, क्यों नहीं डिलीट कर रहे हो? पहली बात, आपके घर से अगर ऐसी वीडियोस जल रही है, आपके बच्चे डाल रहे, तो आप उनको समझाओ, डिलीट करवाओ, कि भड़काओ वीडियोस मत डालो। पर पता नहीं क्यों सो रही है वहाँ की सरकार, मुझे अभी तक ये बात नहीं समझ में आई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ 네ਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਆਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੋਈ पुलिस शिकायत या कोई कुछ कर ली? मैंने उनकी कंप्लेंट्स कर दी हैं। और दूसरा, मेरे साथ सच बोलूँ तो सारे सिख भाई सब मेरे इंस्टाग्राम खोल, मैं भी दिखाऊँ ना आपको, नंबर भरे हुए हैं सबके,
कि बहने तेरे को ज़रूरत पड़ेगी ना, तू 2 बजे रात को भी कॉल करेगी, हम तेरे दरवाजे पे हों। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੈਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ? हाँ, और मैं सच बताऊं, मैं बहुत इमोशनल होती हूँ जब मैं उनकी वॉइस सुनती हूँ ना, वो सीधा बहने निकलता है और इतना दिल को जो ये मुझे बोलेंगे तेरे को ख़रीदा है, हाँ मुझे ख़रीदा है, उनके प्यार ने मुझे ख़रीदा है। आज मेरे पास शायद मैं बता नहीं सकती इतने भाई हैं ना, उन्होंने मुझे ये बोला है कि रखड़ी पे ना तो सुहाना गुरुद्वारे ज़रूर आई हो। मतलब आप ये सोचो कि मुझे कितना प्राउड फील हो रहा होगा कि मेरे पास क्या है, भाई मिले हैं और एक सम्मान मिला है, बस पैसा तो यहीं रखा रह जाना है ना। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੈਣ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। मेरी बुआ को भी यहाँ पे शायद चंडीगढ़ में मेरी बुआ को 50 साल हो गए होंगे, 40-50 साल चंडीगढ़ में हो गए मेरी बुआ को। उनके दोनों बच्चे यहीं से बड़े हुए हैं और बाहर सेटल है, और उनकी बहू सिखों की है, ठीक है ना। तो हमको तो यहाँ बहुत प्यार मिला, अगर मेरी बुआ को प्यार नहीं मिला तो वो नहीं चली जाती यहाँ से। हमें तो बहुत प्यार मिल रहा है भाई, हम तो खुश हैं यहाँ पे। और मैं उनसे बार बार यही निवेदन करूँगी भाई, हाथ जोड़ के, कि हमारे लिए मुश्किलें मत पैदा करो। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ? मेरा फर्स्ट मैसेज उनको यही है कि भक्त बनो पर अंधभक्त मत बनो। और दूसरा, आंखें खोलो, ठीक है। तुम ये देख रहे हो कि वहाँ पार्किंग में ये हो, मैं पूरी वीडियोस तुम्हारे पास भी नहीं है, तुम्हें भी पूरा मैटर नहीं पता, तुमने जो देखा तुम उस पर बयानबाजी कर रहे हो कि वो लोग आके यहाँ ये करते हैं वो करते हैं, पर उनकी अच्छाइयाँ देखो, ठीक है ना। उन एक कमी के पीछे उनकी 100 अच्छाइयाँ मत दबाओ और शांति बनाए रखो। जितना शांति प्यार से रहोगे ना, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और देखो छोटी मोटी बातें तो घर में भी होती है ना, इग्नोर करना पड़ता है, और वो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका तीर्थ स्थान तो देखो सबका है, सब आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। अगले साल कुंभ है, तभी भी सब जाएंगे, फिर इनका क्या होगा? ये चीज़ें सोचने वाली है। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ, हर किसी धार्मिक समागम के लिए ਤੁਹਾਨੂੰ लंगर इतने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ मिलना ही मिलना है। देखो पंजाब में लंगर के साथ साथ एक चीज़ और बताऊंगी, कभी कभी क्या होता है, हिमाचल से उत्तराखंड से पीजीआई आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, गुरुद्वारे रुकते हैं, वो गुरुद्वारे रुक के अपने ट्रीटमेंट करवाते हैं, ना एक पैसा ना कुछ, हाँ ना। तो वो कैसे भूल जा रहे हैं ये चीज़ें। कितने बच्चे यहाँ पेपर देने आते हैं, वो गुरुद्वारे में रुकते हैं, लंगर भी खाते हैं, रुकते भी हैं, है ना। तो वो चीज़ें मत भूलो ना, मत भूलो। ऐसा ना हो ना कि कभी कभी ना बोलते ना, बड़े बोल होते हैं लोगों के, वो कम हो जाते हैं, वही चीज़ हो जाएगी। फिर ये कह रहे हैं ना कि तुम उत्तराखंड आना बंद कर दो, पंजाब वालों को, हरियाणा वालों को मत बोलो। और ऊपर से मुझे सबसे हर्ट ये बात की थी जब उन्होंने कहा ना कि हम इनको वहाँ नहीं आने देंगे, हेमकुंड साहिब नहीं आने देंगे। तुम कौन होते हो उनको रोकने वाले? अगर तुम्हारे देवी देवता पंजाब में होते तो वो लोग ऐसे बोलते, तुम्हें अच्छा लगता? तो इसलिए उनको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि हम गलत बयानबाजी कर रहे हैं, हम और अशांति फैला रहे हैं। ये टकराव दा सीधे सामने की गल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इससे तो ऐसा हो रहा है ना कि वो उनको बोल रहे हैं कि आ जाओ, हम लड़ रहे हैं आपको लड़ाई के लिए, आप आओ, हम आपको बुला रहे हैं, मतलब इस तरीके का वो कर रहे हैं वो लोग बस। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕਦੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼।